Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing all good. So let's just start our session. Um, Welcome, you all have checked into the second last session, that is day 7 of the Android Development Bootcamp. Today's Android App Cloud Online Databases session, which is headed by a talented speaker, Ms. Doa Ali. We'll all end up learning about integrating Firebase in our Android applications today. Before we move on, I have an important announcement to make. You won't be counted in the quiz without the RSVP. Now you should know this after all. So yes, best of luck. Coming to the host for the event, she is Damni Mukhi, the famous and talented face of software engineering department. She has served in communities like SES, Software Engineering Society, and uh, Microsoft, MLSA, and many more. And yet a kind-hearted and hardworking soul indeed. She is a passionate coordinator in DSC Mute. Hi Damni, welcome. Lead the way now. Damni, we cannot hear you. Hold up. Hey, Assalamu alaikum. Can you hear me now? Okay. Yes. So today our guest speaker is Ms. Dua Ali. She is a final year software engineering student from near Jamshoro. She loves and enjoys to share knowledge with others. Her love for coding just cannot be described in words. We are delighted to hear from Dua in our D7 session on Firebase as an online cloud database. Welcome, Dua. Over to you. Hello guys, Assalamualaikum. I hope you all are good. So today I will talk about what is Firebase and how we can integrate Firebase with Android Studio. Let me share the slide first. Can you guys see this slide? Is it visible? Yeah, it is visible. Okay. Now first we have to know what is But your Firebase, voice what is is the not really philosophy. clear. Yeah, it is internet issue. Is it clear now? No. Yeah, it's fine now, I guess. Okay. Okay, so today we will talk about what is Firebase and what is the philosophy of Firebase. Firebase is a Google product, and it is a backend. It uh, it perform a backend service. Like in backend, we always try to use the database and try to use the many servers and try to integrate the servers. So फायरबेस में क्या है कि हम को कुछ भी हमें कुछ भी नहीं करना होता, फायरबेस खुद ही सब कुछ हैंडल करता है. ओके. हम जब मोबाइल एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें जो है सिर्फ एप्लीकेशन ही बनानी है. ऐसा नहीं होता, हमें डेटाबेस को भी उसके साथ, अगर हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें कुछ इसके साथ डेटाबेस और बाकी फाइल सर्वर्स और बाकी ऑथेंटिकेशन के लिए भी हमें इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है खुद से. तो अगर हम फायरबेस को यूज करते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ फायरबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करवाना पड़ता है.
So what people think about mobile application, के मतलब एप्लीकेशन है बस ये हमें जो नजर ऐसा नहीं होता है सर्वर के साथ भी इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ता है और इंटीग्रेशन के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है और हमें ऑलवेज अपडेट खुद से ही मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है अपने सर्वर को। ये चीज काफी मुश्किल होती है, इसके लिए हमें काफी की भी जरूरत पड़ती है, काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम फायरबेस के साथ करते हैं तो हमें वैसे जो है करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए रेस्ट एपीआई यूज करते हैं। और रेस्ट एपीआई क्या काम करता है, जैसे वेब सर्वर काम करते हैं कि हम क्लाइंट जो है क्वेश्चन करते हैं सर्वर को, देन सर्वर रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स सेंड करता है एज क्लाइंट रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसको सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करता है। वो जो भी इमेज, कोई भी सॉन्ग, जो भी डेटाबेस से या फिर अपना कोई यूजर आईडी को वो फेच करवाना चाहता है एज ए लॉगिन करके, तो वो जो भी लॉगिन करवाने वक्त भी जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स कौन सा रिक्वेस्ट करते हैं, लॉगिन होना चाहते हैं। तो ये चीज जो है ये सब सर्वर से मैनेज, हमें खुद से मैनेज भी करना पड़ता है कि कौन कौन से जो है मतलब एप्लीकेशन कौन कौन सी हमारे सर्वर को यूज कर रही हैं, हमें कौन सा रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्लाइंट के रिस्पॉन्स के साथ हमें अपडेट करके उनको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो ये चीज काफी मुश्किल है, हमें इसके लिए मतलब एक्सपीरियंस डेवलपर की जरूरत पड़ती है उन सर्वर्स को इंटीग्रेट करने के लिए, बैकएंड पे काम करने के लिए। क्योंकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो सिर्फ फ्रंट एंड का काम नहीं है, बैक एंड का काम भी उसमें बहुत ज्यादा होता है जब हम उसको किसी सर्वर के साथ इंटीग्रेट करना चाहें। लेकिन सर्वर में सिर्फ डेटाबेस नहीं होता, सर्वर में काफी चीजें होती हैं जिनको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, एनालिटिक्स, मतलब कि हम देखना चाहें कि हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट, और क्रैश रिपोर्टिंग, जैसे कि हमारी कौन कौन से यूजर है जिनकी एप्लीकेशन हमारा जो है सर्वर साइड को यूज करते वक्त क्रैश हो रही है। ऐसे ही काफी ज्यादा जो है सर्विसेज जो है हमें ऐड करनी पड़ती हैं टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर iOS, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर यूज होता है। अगर हम ये चीज रेस्ट एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कभी कभी हम बैकएंड पे एक डेवलपर रख लेते हैं, तो हम खुद ही कर लेते हैं सारी डेवलपिंग। लेकिन अगर ज्यादा हाई एडवांस क्लास की अगर हमें जरूरत पड़ती है सर्वर्स को इंटीग्रेट करने की या सर्वर्स को कंफिगर करने की, तो हमें एक से ज्यादा डेवलपर्स की भी जरूरत पड़ती है। कोई जो काम कर रहा होता है वो सिस्टम एडमिन का काम कर रहा होता है, और बाकी भी सारे डेवलपर्स कोई मैनेज कर रहा होता है डेटाबेस को, कोई सिक्योरिटी मैनेज कर रहा होता है। तो इससे हमें काफी ज्यादा डेवलपर्स की भी जरूरत पड़ सकती है बैकएंड पे। और ऐसा नहीं कि कभी कभी हमें काफी ज्यादा सर्वर्स की भी जरूरत पड़ती है, हम एक सर्वर पे हमारा काम नहीं हो रहा होता है क्योंकि कभी कभी वो स्केलेबल नहीं होता, तो हमें ज्यादा मतलब बिग डेटा पे काम करना होता है, तो हमें ज्यादा सर्वर्स को join करवाना पड़ता है, मतलब इंटीग्रेट करवाना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन पे। सब जो है डेवलपर्स और ये सब रेस्ट एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद क्लाइंट। अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं सारे डेवलपर्स को, और हम ये सारी जो सर्विसेज है इसको खुद से इंटीग्रेट करने के बजाय, खुद से कॉन्फ़िगर करने के बजाय हम इसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं फायरबेस। फायरबेस जो है वो आपकी दोनों चीज़ों की ज़रूरत पूरी करता है, डेवलप की भी, और जो भी सर्विसेज है उनको खुद से मैनेज करता है, और खुद से आपको बस फ्रंट
नहीं होती, वो सब फायरबेस खुद मैनेज करते हैं। रेस्ट एपीआई, जैसे पहले रेस्ट एपीआई के साथ हम सर्वर को कम्युनिकेट करवा रहे थे, सर्वर के साथ अपनी एप्लीकेशन को, तो अब हम फायरबेस का यूज करता है एसडीके। फायरबेस हर हर जो है टाइप के एसडीके से फायरबेस किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, एसडीके के साथ हम आईओएस डिवाइस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और एंड्रॉइड एसडीके के साथ हम उसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे बाकी बहुत सारे भी हैं, हम वेब एसडीके भी है, हम यूनिटी एसडीके भी है, काफी और ज्यादा एसडीके भी हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करवाते हैं। अब फायरबेस को हम बैकएंड एज अ सर्विस कहते हैं। व्हाट इज बैकएंड एज अ सर्विस? बैकएंड एज अ सर्विस इज अ क्लाउड सर्विस। लाइक वी हैव टू बी ऑनलाइन काम होगा सारा, क्योंकि ये क्लाउड पे होगा। आपके डिवाइस में कुछ भी इसका स्टोरेज वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये आप क्लाउड पे ही आपकी जो है वो डेटा होगा जो वो सेव होगा। इन विच डेवलपर्स आउटसोर्स ऑल द बिहाइंड द सीन्स। अब हम अभी फायरबेस को नहीं कह रहे, हम सिर्फ बैकएंड एज अ सर्विस। अब बैकएंड एज अ सर्विस में क्या होगा कि डेवलपर्स जो है वो सब बिहाइंड द सीन्स एक्सपर्ट को काम उस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट दे ओनली हैव टू राइट एंड मेंटेन द फ्रंट एंड। अब डेवलपर्स जो है बैकएंड पे काम कर रहे होंगे, आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना है। लेकिन अगर वो एक सर्विस है तो डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर वो एक फायरबेस सर्विस है या ऐसी कोई सर्विस है तो डेवलपर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो वो डेवलपर्स उनके अपने ही होंगे फायरबेस के, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फायरबेस फ्रीज डेवलपर्स टू फोकस क्राफ्टिंग फैंटास्टिक यूजर एक्सपीरियंसेस। मतलब आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करें, आप बिल्कुल फ्री हैं डेवलपर्स की टेंशन लेने से, बैकएंड डेवलपर्स की टेंशन लेने से और बैकएंड को मैनेज करने से। आप बिल्कुल फ्री, आपको फायरबेस कर देता है। यू डोंट नीड टू मैनेज सर्वर्स। आपको सर्वर्स को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं होती। यू डोंट नीड टू राइट एपीआई। एपीआई भी वो खुद ही फायरबेस खुद ही राइट आपको करवा देते हैं, आप खुद ही राइट हो जाते हैं। फायरबेस इज योर सर्वर, योर एपीआई एंड योर डेटा स्टोर। वो खुद ही एपीआई है, समझ में आया, आप खुद ही सर्वर है और वो खुद ही डेटा स्टोर वो खुद ही मैनेज करता है, सब कुछ वो खुद ही मैनेज करता है। ऑल रिटन so generically that you can modify it to suit most things। जो भी आपको नीड है आप उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। With Firebase you don't have engineer मैम योर वॉइस काफी फास्ट होता है। कोई तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। is it audible? No, no। मैम बस ग्लिचेस हैं थोड़ी बहुत, मतलब कि इतनी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं है क्लियर। मैं दूसरे रूम में जाके देखूं। Is it fine now? No। Yes, Dua, मैम अब आप चैट बॉक्स देख लें एक दफा। अभी ठीक है आवाज? नो।
Yes, Dua, you can continue. It's better. Okay. विजिबल है? जी दुआ, बिल्कुल। ओके, तो मैं कहाँ पे थी कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब कि आप इसमें बिग डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है। मैम आप एक आपको दफ़ा ईयरफोन्स हटा के फिर बात करके देखें, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा दबी हुई आवाज़ आ रही है। ओके ओके। हेलो। यस मैम, अब सही है, बिल्कुल सही है। ओके ओके, सही है। तो स्केलेबल मतलब बिग डेटा, ज़्यादा डेटा आपका है तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी कि ज़्यादा डेटा हो रहा है तो ये स्केलेबल है कि नहीं, मतलब ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकेगी कि नहीं। तो ये बिल्कुल कर सकेगी और आपकी टीम जो है बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल टेंशन फ्री रात को सो सकती है। तो ये फायरबेस जो है, ये फायरबेस का होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड करेंगे और अगर फायरबेस एक गूगल प्रोडक्ट है तो आपको गूगल अकाउंट होना आपका जरूरी है। अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको पहले वो गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा फायरबेस को यूज करने के लिए। तो फायरबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करवाने के दो तरीके हैं। एक ये कि आपको मैन्युअली सारा इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। उसका प्रोसेस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप फायरबेस के वेब पेज, फायरबेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको पहले एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट आपका हो गया, फर्स्ट स्टेप जैसे प्रोजेक्ट आपका बन गया। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम डाल के और अपनी एप्लीकेशन को अगर आप कोई निक नेम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है यूजर्स को, डेवलपर्स को इंटीग्रेट करवाना। तो एक इजी वे भी है जहाँ पे आप अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएंगे। आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएंगे और अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना आप गूगल अकाउंट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से साइन इन करेंगे अपने जीमेल से, वही जीमेल जो आप फायरबेस में यूज करेंगे। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद आप टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे स्लाइड में, हाँ ये रहा। आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद फायरबेस को सिलेक्ट करेंगे। फायरबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये शो होगा, ये टैब शो होगा, ठीक है। इसमें आप जाके आपको काफी सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे क्लाउड मैसेजिंग की, ऑथेंटिकेशन की, रियल टाइम डेटाबेस की। तो आप कोई भी सर्विस लेके और अपने फायरबेस को कनेक्ट कर देंगे। मतलब आप अभी तक के लिए ना आप सिर्फ वही सर्विस को है ना आप इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं, उसके ही जो है मतलब जो डिपेंडेंसीज हैं उसको आप ऐड करवाना चाहते हैं। तो आप पहले कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद आप काफी सारी और भी सर्विसेज हैं वो भी, उसकी भी डिपेंडेंसीज को ऐड करके आप यूज कर सकते हैं सर्विसेज, ठीक है। जैसे ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, अगर मैं उसको ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैं ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को क्लिक करके और फिर जैसे लिखा हुआ है कनेक्ट टू फायरबेस, तो ये करके मैं कनेक्ट करवा सकती हूँ अपनी एप्लीकेशन को। सही है, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ सही तरीके से एग्जाम्पल की हुई है मैंने ऑथेंटिकेशन पे, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं आप। एवरीथिंग इज क्लियर? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए है ही नहीं कोई क्वेश्चन मेंशन यहाँ पे चैट पे। ओके गुड। शेराज अली को क्लियर है सब?
ओके, तो फिर आपको एग्जाम्पल समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एंड्रॉयड जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत स्लो चलता है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करके ना आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। तो आपको स्क्रीनशॉट विजिबल है? यस। जी जी विजिबल ओके, है। तो इस स्क्रीनशॉट में मैं पहले कनेक्ट करवा रही हूँ अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ। तो टूल्स में जाके मैंने फायरबेस सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास ये विंडो शो हुई है। इस विंडो में मैंने ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेट करवाना चाहे, कनेक्ट करवाना चाहे फायरबेस की सर्विस, ये यूज करनी चाहिए मैंने। तो ये मैंने सिलेक्ट की। ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये शो हो रहा है। अब मैं कनेक्ट टू फायरबेस करूंगी। जैसे मैंने कनेक्ट टू फायरबेस किया तो मेरे पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में मैं साइन इन करूंगी। साइन इन करने के बाद मेरे पास फायरबेस, जब मैं उसको अलाउ करूंगी कि मुझे फायरबेस के साथ असेस करना है फायरबेस को इसी जीमेल आईडी के साथ, तो फिर मैं अलाउ करूंगी। अलाउ करने के बाद मेरी जो है मुझे शो हो रहे हैं लॉग इन टू एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो जो डेवलपर्स है वो मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे फायरबेस का आइकन जो है, लोगो जो है वो शो हो रहा है। मैं इसको जब क्लिक करूंगी यहाँ तक मतलब मेरा फायरबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं फायरबेस को ओपन करके देखूंगी। तो फायरबेस पे मैं कंसोल पे जाऊंगी। कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपके कौन कौन से पहले से, मेरे पास पहले से 2 प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, लेकिन आपके पास शायद आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ भी ना बना हुआ हो। तो जब आप वापस एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंडो शो होगी। अब इस विंडो में क्या है, क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, और उसका नाम मेंशन किया हुआ है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। और लिखा हुआ है चूज एन एग्जिस्टिंग फायरबेस और गूगल प्रोजेक्ट। अब आप कोई एग्जिस्टिंग जो बना हुआ है आपके पास प्रोजेक्ट, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आपके पास ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये शो नहीं होंगे, आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, जब क्रिएट पे पहले से ही जो है रेडियो बटन वो सिलेक्ट हुआ हुआ है तो आप सिर्फ कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे, पहले जहाँ पे कनेक्ट टू फायरबेस लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपका फायरबेस के साथ आपकी एप्लीकेशन जो है कनेक्ट हो चुकी है। और जो फायरबेस पे जाके जो आपका वो एप्लीकेशन जो क्रिएट हुई होगी वो उसी नाम से क्रिएट हुई होगी जो आपको पहले से यहाँ पे शो हो रही थी। ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली, आपकी डिपेंडेंसीज खुद ही सेट हो गई हैं। आपकी जो जो चीजें मतलब चाहिए थी आपको सेट करने के लिए वो खुद खुद सेट हो गई हैं। वरना अगर आप वो मैन्युअली करते फायरबेस को के साथ तो फिर आपको सारी डिपेंडेंसीज जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ती, तो इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेता है। तो ये प्रोसेस ज्यादा इजी है। ओके, तो ये डिपेंडेंसीज सारी ऐड हो गई हैं जब हमने बिल्ड ग्रेडल को देखा।
और ये सिंक भी खुद ही हो जाता है, हमें सिंक भी नहीं करना पड़ता। अगर खुद ना नहीं हो रहा आपका तो आपको सिंक करना पड़ेगा। ये थी ऑथेंटिकेटर ऐप, ये आपका एप्लीकेशन का नाम था। ये खुद ब खुद यहाँ पे कंसोल पे आपको शो हो गई, यहाँ को आपको बनाना नहीं पड़ी, वहां से आपने क्रिएट की एंड्रॉइड स्टूडियो से, यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे आपको आके डेवलप को सिलेक्ट, जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको डेवलप में जाके ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। ऑथेंटिकेशन को जब सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे आपको ये सारी जो है साइन इन मेथड्स, आपको हम साइन इन की एग्जांपल कर रहे हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा साइन इन मेथड्स हैं। आप फोन नंबर को यूज करके साइन इन कर सकते हैं, आप गूगल अकाउंट, बाकी भी अकाउंट्स हैं उनको भी यूज करके आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ईमेल और पासवर्ड का साइन इन मेथड दिखा रही हूँ। तो आपको ये सब पहले से डिसेबल होंगे, आपको इनेबल करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनेबल किया। इनेबल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जब डिसेबल को क्लिक किया तो ये खुद ये विंडो ओपन हो गई। अब विंडो में मैंने क्या किया, इनेबल को सिलेक्ट कर दिया और फिर मैंने सेव कर दी, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो है, अब आप अपनी एप्लीकेशन को जब यूज करेंगे, जब आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे तो आप उसमें जो भी अकाउंट जो है आप रजिस्टर करेंगे तो वो यहाँ पे आपके पास शो होंगे, ठीक है। यूजर्स में आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो हैं यूजर्स जो भी आपने रजिस्टर किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे। आप यहाँ से भी यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं फायरबेस के, आप फायरबेस ओपन करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिलीट का ऑप्शन है तो वहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं यूजर्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। आपको प्रोसेस क्लियर है जो मैंने अभी दिखाया कि कैसे कनेक्ट करवाना है अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो को, एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ? ये क्लियर है सबको? मैम आप चैट बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे सवाल आए हैं। जी जी जी, एक मिनट, ये सवाल ये है। मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। आप पहले अपने आप को लॉगिन करवाने की बात कर रहे हैं, तो लॉगिन टू फायरबेस लाइक अ डेवलपर? एक मिनट, ठीक है। आपने अपने आप को लॉगिन करवा दिया, उसके बाद डू यू हैव टू मेक सम चेंजेस और विल इट ओनली एनी इशू फॉर क्लाइंट? देखिए, अगर आप फायरबेस को अपना अकाउंट एक बना के, मतलब आप अपना अकाउंट ही चेंज करना चाहते हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि आप अकाउंट चेंज कर सकते हैं या नहीं अपना?
तो आपकी ये बात समझ मुझे आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे लॉगिन होना है। मुझे आपका सवाल सही से समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप माइक ऑन करके बता दें मुझे, क्योंकि फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी तो आपको कुछ मिस ना हो जाए। आप माइक ऑन करके मुझे सवाल बता दें। हेलो मैम। जी जी। लो। हेलो मैम। जी जी, सवाल बताएं। मैम मैं ये सवाल कह रहा था, जब हम फायर बेस पे अपना मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम अपना जीमेल अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू। अब मेरा जब प्रोजेक्ट मींस ऐप पूरा बन गया है, अपनी हम्म ऐप की डेटा जो भी डेटा हो रही है वो सर्वर से ले रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है। हम्म तो वो मेरे जीमेल पे सारा वो बना हुआ है, तो जब मैं एप्लीकेशन सारी बन जाएगी और क्लाइंट को सबमिट कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई इशू नहीं होगा? मतलब आपके पास जो डेटा सेव हुई है, आप या किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं? ज़रूर, हम ऐप तो सारे डेवलपर्स अपने लिए नहीं बनाएंगे ना, वो तो किसी क्लाइंट के लिए ही बनाएंगे। सही। तो फायरबेस पे हमने अपना जीमेल लगा के वो प्रोजेक्ट फायरबेस पे बनाया है, ठीक है। तो जी जी। इसके लिए क्लाइंट से कोई इशू नहीं होगा? क्लाइंट जब ये ऐप यूज़ करेगा, सर्वर से डेटा ले रहा है, फेच कर रहा है, कुछ भी? तो क्लाइंट को आप अगर आप खुद ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्लाइंट को सेट करके देंगे ना उसको अकाउंट। आपका अकाउंट तब डिलीट हो जाएगा, बाकी की सारी एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फायरबेस पे जो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर क्लाइंट के जीमेल से बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप अपने जीमेल से बनाएंगे, जाहिर बात है आप टेस्टिंग करेंगे। तो आप टेस्टिंग करने के बाद आप अपना डेटा रिमूव करके उसको सेंड करेंगे ना, आप एज अ न्यू प्रोजेक्ट सेंड करेंगे। तो आप न्यू प्रोजेक्ट के बाद उसको आप उसकी जीमेल आपको सेट आप उसकी जीमेल आप सेट करके उसको दे देंगे। फिर वो खुद ही तो फायरबेस को फिर वो खुद ही मैनेज करेगा। अच्छा मैम, क्लाइंट को तो पता नहीं होगा कि उसकी जीमेल हम फायरबेस पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेटा फायरबेस में सारी स्टोर हो रही है। देखिए, आप कस्टमर को आप अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, तो आप उसकी जीमेल ऐड करके अपनी जीमेल आप डिलीट कर देंगे, और उसकी जीमेल पे फायरबेस को ऑन ओपन करके ना आप अपना प्रोजेक्ट उसके साथ ऐड कर देंगे। आपका सारी एप्लीकेशन आपकी बनी हुई होगी। आप बस उसकी जीमेल की जो फायरबेस ऑन होगा, ओपन होगा ना, तो उसके साथ आप उसका जीमेल लगा के आप जैसे अभी कनेक्ट किया, कनेक्ट करवा देंगे। अच्छा मैम, मेरा यही सवाल था, मतलब हम जब ऐप बनाते हैं तो इसी तरीके से बनता है। थैंक यू मैम, इट्स क्लियर। ओके। तो अब मुझे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो शो हो रहा है? स्क्रीन पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो शो हो रहा है? जी जी, हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे जो है हमने एप्लीकेशन सारी बनाई हुई है, ठीक है। लेआउट तो आप सबको बनाना आता होगा। तो हम डॉट जावा फाइल को देखते हैं। तो पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ अभी। तो ये रजिस्टर डॉट जावा की लेआउट फाइल है, सही है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल लेआउट है। पिक्चर ऐड हुई हुई है और टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के यूज हुए हुए टेक्स्ट व्यू। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम सब ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया हुआ है हमने, सबके रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है जैसे जावा में करते हैं हम। ओके। तो रेफरेंस करके उसके बाद उसको कनेक्ट करवा दिया है
अपने लेआउट के जो आईडीज हैं उसके साथ, ताकि लेआउट पे काम हो रहा है तो फिर उसके साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए जावा फाइल को हम फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड यूज करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स को हमने लेआउट के आईडीज के साथ कनेक्ट करवा दिया। उसके बाद ये जो वेरिएबल है एफ ऑथ का, ये फायरबेस ऑथ एक क्लास है जो ऑथेंटिकेशन पे काम करने के लिए यूज होती है। ऑथेंटिकेशन के लिए हम फायरबेस ऑथ की क्लास यूज करते हैं। ओके, और इसीलिए अब हम इसका पहले इसको गेटिंग इंस्टेंस ऑफ मतलब उसका इंस्टेंस लेने के लिए हम यूज करेंगे फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने इंस्टेंस भी ले लिया और सारी जो है वेरिएबल्स भी बना लिए आईडीज को कनेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेथड्स हैं, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उसको हम यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। अब यहाँ पे है, जब हम फील्ड्स हैं उनमें डेटा डालेंगे, डेटा डालने के बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है उसका जो है हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज होता है जब हम क्लिक करें तो वो इवेंट अकर हो। ठीक है, और ये ऑन क्लिक लिसनर उसको लिसन कर सके। ठीक है, तो ये इवेंट अकर होगा। जब ये इवेंट अकर होगा तो क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, ये ऐड हो जाए फायरबेस में। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले सारी स्ट्रिंग्स जो है मतलब जो डेटा है वो सारा गेट कर लिया हमने। उसके बाद हम चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फील्ड जो है, जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं जैसे कि ईमेल फील्ड या पासवर्ड फील्ड, ये दो फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसकी बिहाफ पे हमें ऑथेंटिकेट कर रहे हैं अपनी यूजर को। ठीक है, तो वो फील्ड्स में कोई मसला तो नहीं है, वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये टेक्स्ट यूटिल्स क्लास है, इसका इज एम्प्टी मेथड है, इससे हम देखेंगे कि जो वो स्ट्रिंग है वो नल तो नहीं है। तो जब हमने ये देखा कि अगर वो नल होगी तो सेट एरर, मतलब एरर शो हो। एरर शो क्या हो, ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो ईमेल तो जरूरी चाहिए। ठीक है, और रिटर्न हो जाए, मतलब वो एरर रिटर्न हो। और उस पे दूसरा क्या हमने वैलिडेट किया हुआ है कि इज एम्प्टी पासवर्ड, के पासवर्ड तो एम्प्टी नहीं है, तो हमें पासवर्ड भी जरूर चाहिए, पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फायरबेस जो है उसकी हम लेंथ भी सेट करेंगे कि कितना लेंथ का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको वैलिडेट करने के लिए हम पासवर्ड डॉट लेंथ, हमने पासवर्ड डॉट लेंथ मेथड लिया है। अब उसकी जो पासवर्ड की लेंथ है अगर वो लेस देन 6 हुई तो फिर एरर शो होगा कि पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करेक्ट। ये चीजें हमने वैलिडेट कर दी। अगर ये सब सेट है तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब आपकी जो ऐप है वो रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और शुरू में जो प्रोग्रेस बार था वो हमने इनविजिबल किया हुआ था वहां पे लेआउट में, क्योंकि हमने उसी टाइम मतलब विजिबल करना है जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि वरना यूजर को फील होगा कि मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। तो इसीलिए हमने व्यू डॉट विजिबल यहाँ पे किया हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक होगा तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा फायरबेस के साथ, उसका फायरबेस के बाद डेटा जा रहा होगा तो उसकी उस टाइम पे ये प्रोग्रेस बार आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्रिएट यूजर विथ ईमेल पासवर्ड, ये फायरबेस ऑथ क्लास का मेथड है, ये प्री डिफाइंड मेथड है। इसमें दो
पैरामीटर्स ऐड होते हैं, एक होता है ईमेल, दूसरा है पासवर्ड। ठीक है, जब ये प्रोसेस जो है क्रिएट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको जावा में और फायरबेस में टास्क कहते हैं, कि टास्क परफॉर्म हो रहा है क्रिएट होने का। ठीक है, तो टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, टास्क अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या शो होना चाहिए? एक टोस्ट शो होगा, उसमें होगा यूजर क्रिएटेड, यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन वहीं पे नहीं, आपकी जो एंड्रॉयड फाइल है उसमें क्या हो जाएगा, दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, और वो होगी मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट एक लॉग आउट बटन है अगर आपको लॉग आउट करना है तो। ठीक है, और एल्स क्या होगा, अगर आपकी सक्सेसफुल टास्क आपका सक्सेसफुली क्रिएटेड मतलब नहीं होता आपका यूजर, तो आपको शो होगा एरर। अब वो एरर कुछ भी हो सकता है, अगर आपका इंटरनेट जो है ऑफ है तो ये आपको शो होगा कि कनेक्शन एरर है, या फिर वो फायरबेस के खुद के एक्सेप्शंस हैं, तो हमने वही प्रिंट करवाने चाहिए गेट टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन के मेथड के साथ, डॉट गेट मैसेज। तो हम हर मैसेज को अपने अपने आप से लिखना नहीं चाहते, तो हम उसकी एक्सेप्शंस को ही शो करवाना चाहते हैं, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, वरना हम खुद भी कुछ भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शो किया है, तो अगर आपका इंटरनेट ऑफ होगा तो वो आपको उसी टाइप का एरर शो करेगा, और अगर आपका यूजर पहले से ऐड होगा तो उस टाइप का एरर आपको शो करेगा कि यूजर इज ऑलरेडी सम यूजर इज ऑलरेडी यूजिंग दिस अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद लॉगिन बटन है। लॉगिन बटन यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड है, उसमें लिखा होगा कि अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करें और आपको लॉगिन जो एक्टिविटी है वो शो होगी। अब लॉगिन एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के अपने आप को लॉगिन कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको लॉगिन एक्टिविटी दिखाती हूँ। लॉगिन एक्टिविटी का मैं लेआउट पहले आपको दिखा देती हूँ। ये है लॉगिन एक्टिविटी का लेआउट। तो अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी चैट अभी शो नहीं हो रही, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे लेआउट सिंपली जो वैसे उसका लेआउट बना हुआ था, बस यहाँ पे क्या है कि दो फील्ड्स हैं, एक है ईमेल और दूसरी पासवर्ड। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड भी बिल्कुल ही रजिस्टर के साथ सेम है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा था क्रिएट विथ ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है लॉगिन के लिए? लॉगिन के लिए जो मेथड यूज हो रहा है वो है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। बाकी सब सारा सेम है। अगर वो सक्सेसफुली हो रहा है तो लॉगिन सक्सेसफुल शो हो और मेन एक्टिविटी शो हो जाए, और अगर सक्सेसफुली नहीं होता तो हमें एरर शो हो। ठीक है, और जब एरर आ गया है तो प्रोग्रेस बार जो चल रहा था वो उसको तो चले जाना चाहिए गॉन, तो वो विजिबल नहीं होगा और वो खत्म हो जाएगा प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट फील्ड होगी, वहाँ पे लिखा होगा अगर आप न्यू यूजर है तो आप अपने आप को पहले रजिस्टर करें, लॉगिन मत करें, रजिस्टर करें, तो फिर आप वहाँ पे भी दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। कोड समझ आ गया होगा ना आपको? वैसे ये जो कोड है ये आपको फायरबेस भी अपनी तरफ से भी कोड शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना खुद उसमें जो है मेथड्स वही यूज करेंगे जो फायरबेस प्रोवाइड करे, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप खुद की अपनी चेंजिंग्स करवाना चाहते हैं कोड में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक मिनट में आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे टूल्स में जाके हमने देखा ना ये फायरबेस नंबर बार बने, यहाँ कहाँ गया ये? हम्म,
ये ऑथेंटिकेशन था ना, हमने ये किया हुआ था, ये कनेक्टेड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, चेक ऑथ स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फायरबेस ऑथ को आपको पहले डिक्लेयर करना होगा और फिर आपको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, उसका इंस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये तो ऐसे काफी ऑथेंटिकेशन भी सिर्फ वही नहीं है जो मैंने बताई है, इसमें भी काफी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया फोन यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ऐसे काफी चीजें हैं। अब अगर एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए हम क्या करते हैं, लॉग इन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये मेथड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से भी शो हो रहा है, यहाँ से भी आपको कोडिंग शो हो रही है, आप यहाँ से भी करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजिंग करनी है, तो आप वो कर देंगे अपनी तरफ से। जैसे मैंने प्रोग्रेस बार डाला हुआ है तो ऐसे करके अगर मैं अपना कोई टोस्ट शेयर शो करवाना चाहती हूँ या मैं कुछ ऐसा, तो अब मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये आउटपुट है, वीडियो शो हो रही है सबको, एक मिनट, वीडियो शो हो रही है, तो माइक ऑन करके बता दे। यस मैम, हो रही है। ओके, एक मिनट। तो वीडियो शो हो रही है ना आपको, अब आप आउटपुट देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। अब मैंने यूजर नेम पे दुआ लिखा, ठीक है, और मैंने, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैंने ईमेल जो है वो मैंने 4 डिजिट का दिया है, 4 कैरेक्टर्स का, नंबर कोई भी। अभी इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है ईमेल और पासवर्ड। आप जो यूजर नेम है और फोन नंबर को बस वो आप इग्नोर कर दें उसको अभी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ईमेल नहीं लिखा था और मैंने क्या किया, रजिस्टर करने की कोशिश की, तो अब मुझे क्या शो हो रहा है, एक एरर शो हो रहा है। और वो एरर क्या है, वो एरर है, एक मिनट, आपको एरर शो होगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये समझ आई बात आपको, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब ईमेल हम डालेंगे। अब ये जो ईमेल था ना 28 वाला, वो मैंने पहले से ऐड करवाया हुआ था, तो फिर मैंने टेस्टिंग के लिए ट्रू हटा दिया। ठीक है, तो अब मैं जैसे फिर से रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा जो पासवर्ड है वो <6 है, तो फिर भी मेरा नहीं, ये रजिस्टर नहीं हो रहा। ठीक है, फिर से मुझे शो हो रहा है कि आपका एरर है, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने जब इसको 6 कैरेक्टर्स का किया तो ये ऐड हो रहा है। अब जब ये ऐड हो रहा था तो हमारा प्रोग्रेस बार चल रहा था, और यहाँ पे आ गया है ये डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड, ये एक मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, सॉरी मैं आपको लॉग आउट का कोड दिखाना भूल गई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हम लॉग आउट करेंगे तो हम वापस से लॉगिन पर आ गए, क्योंकि हमारा तो रजिस्टर तो हो गया ना। अब हमें लॉगिन, अगर हम लॉग आउट करें तो हमें लॉगिन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉगिन करेंगे हम उसी ईमेल से जिससे हमने रजिस्टर किया खुद को, हमने पासवर्ड ऐड किया जो हमने पहले लिखा था। अब मैं दूंगी, ये देखें लॉगिन हो गया। ठीक है, फिर से आप लॉग आउट करेंगे तो फिर से लॉगिन पे आ जाएंगे आप। ये था आउटपुट। अब अगर आपका यूजर जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सही है, अगर आपका यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसका आउटपुट ऐसे शो हो रहा है। ये चीज, ये कंडीशन भी थी ना। तो ये 28 का जो जीमेल था, आपको मैंने वो दिखाया था ना यूजर्स की, जो वो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई थी, वो फाइल के, ये सारे ईमेल्स हैं, ये जो ऐड हो चुके हैं, ये यूजर्स ऐड हैं, तो उसमें से ये एक ईमेल था। अब मैं इसको फिर से
रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ। जैसे मैंने इसको फिर से रजिस्टर करवाना चाहा, तो अब ये रजिस्टर फिर से नहीं होगा। अब आपको एरर शो होगा। एरर क्या शो हो रहा है? द ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट। ठीक है, ये चीज ये कहाँ से फेच करके ये खुद बता रहा है, ये फायरबेस से। आपको कोई भी चीज ऐसे मैनेज करने नहीं पड़ रही, मेथड्स भी वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल इजी टू यूज होता है ये फायरबेस। ठीक है, तो अगर आप लॉगिन है पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा सारा आउटपुट जो है, मैंने आपको दिखा दिया है। लॉग आउट का बटन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, बाकी सब तो मैंने बता दिया है आपको। ये मेन एक्टिविटी में था लॉग आउट बटन। यहाँ पे मैंने जो है ना, जो नहीं लेआउट में हम ऑन क्लिक को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बस हम उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे जो ऑन क्लिक जो है वो लेआउट लॉग आउट के नाम, मेथड के नाम से यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मतलब लॉग आउट होगा तो क्या होना चाहिए? साइन आउट का इंस्टेंस लिया और साइन आउट का मेथड उसने लिया, और बस कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ साइन आउट का मेथड यूज करना है। एक प्रीडिफाइंड मेथड है, आपने ये मेथड यूज किया, आपका खुद ब खुद साइन आउट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि जब साइन आउट हो जाए तो लॉगिन एक्टिविटी जो है वो ओपन हो जानी चाहिए। फिनिश, बस यही था। वैसे तो फायरबेस काफी बड़ा है, आपको काफी ज्यादा सर्विसेज उसमें मिलेंगी, लेकिन क्योंकि ये सेशन का टाइम ही थोड़ा था तो मैंने सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि फायरबेस कैसे वर्क करता है ये शो करवाना चाहा है आपको। एक मिनट, जब हम यूजर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जब यहाँ पे साइन इन मेथड्स में हम साइन इन मेथड्स को इनेबल कर रहे थे ना, तो उसके साइड में ही होगा यूजर्स। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से यूजर्स है वो ऐड हो रहे हैं हमारे पास। एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं लेकिन ऐड यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो चैट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चंस? एम आई ऑडिबल? मुंतहा को बिल्कुल समझ आ गई है, गुड, थम्स अप। ओके, आई एम ऑडिबल। सो मत इसका मतलब है कि सबको क्लियर हो चुका है, या तो फिर बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया आपको? बाकियों को सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दे चैट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप मुझे मैम बोल रहे हैं, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। जो मैंने सीखा वो आपको सिखाना चाहा। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, और आप सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं, आप सिक्योरिटीज को भी आ, आ, मतलब आप देखेंगे, और रियल टाइम डेटाबेस को भी ट्राई करेंगे। जैसे अभी मैं जो मैंने यूज किया हुआ था यूजर आईडी और पासवर्ड का, तो ये चीज जो है, ये चीज हम रियल टाइम डेटाबेस में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, या तो फोन नंबर के साथ अगर हम ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, ईमेल के साथ नहीं, तो फिर हम उसको करेंगे। तो अगर सिर्फ ऑथेंटिकेशन का था तो मैंने ईमेल और पासवर्ड को प्रेफर किया। ठीक है, तो आप फेसबुक को भी ऐड करवा सकते हैं, फेसबुक के साथ भी आप साइन इन कर सकते हैं, और भी काफी ऑप्शंस है, आप सब ऑप्शंस एक साथ भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू, तो अल्लाह हाफिज।
Are you guys having any question? Please ask. दामिनी सबको क्लियर हो गया है, सारा चैट बॉक्स भरा जा रहा है क्लियर क्लियर से, तो अच्छा है, क्लियर हो गया। Thank you so much, ma'am, for your time, and thank you so much, ma'am, for being a contributor towards the rewarding Android bootcamp for participants who look up to you always. And our session ends here. So the participants can move towards the quiz. Link is dropped in the chat box. Please check out. Thank you. Thank you. Thank you, students. Allah Hafiz. And yeah, don't forget to fill up the feedback forms, please. Yes, please. Feedback form fill करें। Allah Hafiz. दामिनी मैं लीव कर दूं? Yes, you can. Yes, ma'am. आप leave कर सकती हैं. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.